Hello students, today we are going to read our chapter 4 in Honeysuckle, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. I'm sure you all might have heard the name of Kalpana Chawla, as we all are from Haryana. And Kalpana Chawla, she is one of the, you can tell, the heroines of India. We all know her name. She was the first Indian woman to go to the space and she belonged to Haryana. So we all must be proud of her. We all are also residents of Haryana. So before we read the chapter, let us read. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission of Columbia ended in tragedy. So the chapter begins with an introduction about this Kalpana Chawla, that she in 1997, and it is said that Kalpana Chawla, she was an Indian American, that means she was born in India, she was brought up in India, but later she got the citizenship of America. So that's why she is called the Indian American. And she was part of the international crew. Crew means what? Crew is a group of people who work closely together. So she was a part of the international crew aboard the US Space Shuttle. Space Shuttle, it is an you can say a space shuttle, like it is a spacecraft that is made for traveling to the space, into the space a repeated number of times it can go, and like a rocket, not like a rocket. Okay, rocket can go only once, but the space shuttles can go for a repeated number of times. They can be sent to the space between the earth and the space station. So this Kalpana Chawla, she became a part of this crew, the US Space Shuttle Columbia, and she was the first Indian born woman who was go into the space. But it was a very sad incident. The second mission, this was her second mission to go to the space, and the second mission in Columbia is the name of the space shuttle, ended in tragedy. Tragedy means something which has a sad ending. So this, what was that tragedy? Let us read. So before we read, there is some meanings. Okay, here the space shuttle, already I have told you the meaning of space shuttle, and we will come across these words. Some words are given. Use a dictionary to do the tasks below. Find out the meanings of the following words and phrases. Look up the words underlined in the phrases. So here some phrases are given and some words are underlined. So you have to find out the meanings of these words. I'll be explaining you the meanings of these words as we come along these words in the chapter. Naturalized US citizen, space, frontiers of space, aboard, lift off, crew. Okay, I'll be explaining you all these meanings. Then the spellings. Okay, when we read this chapter, notice the spellings of these words in this lesson. Airplane, program. So these spellings, airplane and program, which are used here, it is actually American English. In American English and British English, there is a difference. The pronunciation is different, the spellings are different little bit. So airplane is nothing but aeroplane, which we call aeroplane in India, or according to the British English it's called aeroplane, and in America it's called airplane. So it's the same thing, but the pronunciation and spellings are different. We in India follow the British English actually. So this chapter begins with a news report. So this news report, it is from the US magazine, that is Span. There are, yeah. So tragedy in space.
US space shuttle Columbia breaks into flames. So this there was a tragedy that happened in the space, and that was the US space shuttle, that is Columbia, it breaks into flames. That means it burst into flames. Okay, उसमें आग लग गई थी. Flames means fire. In an unprecedented space tragedy. Unprecedented means जो हमने कभी ना तो देखा ना कभी सोचा कि ऐसा हो सकता है. So in an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia, which was carrying an Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames. तो वो जो कोलंबिया था, स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, जिसमें कि कल्पना चावला शी वेंट टू द स्पेस, and the Indian born American astronaut means a person who goes to the space is called an astronaut, and there were 6 others along with her. So total there were 7 members in the spacecraft Columbia, and it broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. So this Kalpana Chawla and all the 6 others who were there in the Columbia, it broke apart in flames. That means उसके बिल्कुल जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस का जो एटमॉस्फेयर वो अलग होता है, तो जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला था, तो वो जो है उसमें बिल्कुल आग लग गई थी. इट बर्स्ट इनटू ब्रोक अपार्ट, मतलब उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए थे इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास. स्ट्रीक्ड मतलब मूव वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट. ओके, जब वो टेक्सास इज द नेम ऑफ अ सिटी इन यूएस. सो जैसे ही वो टेक्सास के ऊपर से वहाँ से लैंड करने वाला था ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप, उसकी लैंडिंग स्ट्रिप जो है मतलब जहाँ से वो लैंड करने वाला था, ऑन सैटरडे 1st February, दैट वाज द डे वाज सैटरडे एंड द डेट वाज 1st February 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड मतलब जो उस समय उस स्पेस शटल कोलंबिया में मौजूद थे. 7 members, there are 7 crew members, you can say. They all were killed in this tragic incident. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. जो सुबह के 9 बजे थे. नासा it is the space agency of America. सो दिस स्पेस शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा. तो ये जो कोलंबिया था, इसका जो है कॉन्टैक्ट नासा से बिल्कुल टूट गया था एट अबाउट 9 AM, सुबह के 9 बजे. उस समय अमेरिका में सुबह के 9 बजे थे, एंड 1930 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो हमारे इंडिया में उस समय जो है शाम के 7:30, 7:30 बजे थे. एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, तो वो लैंड करने वाला था, और उसी समय जो है ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था कि उसका जो है कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था नासा के साथ. इट वॉज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ ओवर 2 लाख फीट. वो जो है इतनी हाइट, ऊंचाई पे उड़ रहा था. इट वॉज एट द 2 लाख फीट हाइट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर्स पर आवर when ground control lost contact with the shuttle. तो उसी समय जो है when the spacecraft Columbia, it was flying at the height of 2 lakh feet, and the speed of the space shuttle was 20,000 kilometers per hour, or at that time it lost control with the NASA. Columbia had lifted off on 16th January 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा. तो ये कब गए थे इस मिशन पे? तो कोलंबिया जो है नाम है स्पेस शटल का, और उस पर वो लोग कब गए थे? ऑन 16th January 2003 दे स्टार्टेड, हैड लिफ्टेड ऑफ मतलब टेक ऑफ. उस दिन वो अपनी जर्नी शुरू की थी उसने वहाँ से. फ्रॉम वेयर? कैनेडी स्पेस सेंटर, एक नाम है स्पेस सेंटर का, जहाँ से कि इनको स्पेस क्राफ्ट्स को टेक ऑफ किया जाता है. फ्रॉम देयर दे आर लिफ्टेड ऑफ. और वो कहाँ पर है? फ्लोरिडा. इट इज़ अ प्लेस इन US, फ्लोरिडा. और वो कितने दिन तक रहा? इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days
and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey. तो कितने दिन रहा? 16 डेज तक वो स्पेस में रहा था. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट. ऑर्बिट मतलब उनका फिक्स पाथ होता है इनका भी, और अपने ही पाथ में, अपने ही रास्ते पे वो 16 डेज तक रहा था स्पेस में. और वो 7 मेंबर्स जो थे वो क्रू के, उन लोगों ने नियरली 16 डेज में 80 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे वापस नीचे. बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी मतलब वापस आने से पहले. विच एंडेड इन ट्रेजेडी. और ये एंडिंग उसका क्या हुआ? ट्रेजेडी में, है ना, डिज़ास्टर, जो कि सैड एंडिंग था उसका. दिस वॉज कोलम्बियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. तो ये जो है कोलंबिया, मैंने बताया था आपको कि ये स्पेस शटल था. एंड स्पेस शटल जो है वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो जो है कई बार स्पेस में जा सकते हैं. अर्थ से लेकर स्पेस स्टेशन तक वो एक ही बार नहीं जाते हैं, वो कई बार भेजे जा सकते हैं. और ये जो है ऐसा डिज़ाइन किया गया था. इट इज़ सेड दैट इट वाज गुड. वो बिल्कुल सही कंडीशन में था. इट वाज इन प्रॉपरली कंडीशन. बिल्कुल सही था कि वो 100 टाइम्स जा सकता था स्पेस में. और ये जो कल्पना चावला और जो क्रू थे उनके 6 मेंबर्स जो थे वो सारे जो हैं गए थे इस बार. दिस वाज द 28th स्पेस फ्लाइट थी वो उनकी. 28th टाइम कोलंबिया वाज गोइंग टू द स्पेस. कल्पना चावला और बाकी के 6 लोगों को लेके वो. ओके, सो दैट इज़ द आर्टिकल, द न्यूज़पेपर आर्टिकल. नाउ वी विल रीड अबाउट the first paragraph of the chapter. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. So कल्पना चावला क्या कह रही है? That she never dreamed. जब वो बच्ची थी, या as a child in, जब वो छोटी बच्ची थी, वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ द. फ्रंटियर्स मतलब बाउंड्रीज होती हैं. ओके, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो है वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, बाउंड्री, स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस करूँगी मैं. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. तो ये कल्पना चावला जो है वो बॉर्न कहाँ पर पैदा हुई थी? इन करनाल, इन हरियाणा. उसके पेरेंट्स जो हैं वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं थे. उनके लिए यही काफ़ी था कि उन्होंने उसको ये परमिशन दे दी थी कि वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, इंजीनियरिंग चूज़ किया था उसने अपने कॉलेज में पढ़ाई. और उन्होंने उसको ये अलाउ किया. दे अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. जो टैगोर स्कूल से उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी. ग्रेजुएशन करने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था. और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो उसने जो है क्या है किया था? बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी उसने की थी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है भाई? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच होती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, विच इज़ कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट. उसमें जो है डिज़ाइन, कैसे एयरक्राफ्ट को बनाना है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना है, ये सब सिखाया जाता था उसमें. कैसे उसको रिपेयर करना है, ऑल दिस थिंग्स वर टॉट. तो उसने जो है इसमें अपनी बीएससी करी थी, that is in aeronautical engineering, against great opposition from her father. उसके फादर ने अपोज किया था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो एक लड़की होके और ये सब काम सीखे इंजीनियरिंग का, क्योंकि आज तक जो है ऐसे लड़कियां जो है यूजुअली इस टाइप का, और भी उस टाइम की बात है. ओके, तो उस समय इतने लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना इतना नहीं सोचते थे इतना. लेकिन इसको बहुत इंटरेस्ट आया कल्पना चावला को. बचपन से ही वो जो है इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों में. तो उसके फादर ने अपोज़ किया था कि ये मत लो तुम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. लेकिन फिर भी उसने अपने फादर की अपोजिशन के बावजूद उसने इसमें अपनी डिग्री कंप्लीट की थी.
और उसके बाद क्या किया उसने, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जो है उसको बीएससी के बाद अब उसको एमएससी करनी थी, मास्टर्स डिग्री चाहिए थी इसमें, किसमें, इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद वो आगे कहाँ गई, फिर वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता था उस समय उसको, तो यूएसए गई थी वो। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर वो वहीं पे नहीं रुकी, एमएससी तो उसने मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर ली थी, और उसके बाद उसने पीएचडी जो है वो एमएससी के बाद पीएचडी की जाती है, तो उसने उसके बाद पीएचडी भी की उसमें, मतलब डॉक्टरेट बोलते हैं उसको पीएचडी। तो उसने उसी में डॉक्टरेट भी की इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ओके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होता है, वो भी एक इंजीनियर होता है, एन इंजीनियर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेस व्हीकल्स। तो उसने जो है इसमें अपनी इंजीनियरिंग की थी, पीएचडी की थी, सॉरी। देन कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, here you can see this is the picture of Kalpana Chawla to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida। तो ये जो है कल्पना चावला, ओके, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। तो वो सबसे पहले, उसको इंडियन अमेरिकन इसीलिए बोला गया बिकॉज शी वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, बट लेटर शी गॉट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका। ओके, and she was the first Indian American woman astronaut to blast off मतलब take off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida। तो लॉन्च पैड क्या होता है बेटा, लॉन्च पैड मतलब वो एक प्लेटफॉर्म होता है। ओके, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स आर लॉन्च्ड। So here from this launch pad, and where was the launch pad? At Cape Canaveral, Florida, to participate in a successful mission in space। और वो अब स्पेस में जा रही थी। ओके, टू पार्टिसिपेट इन अ मिशन, कोई स्पेस का मिशन था और उसमें उसको एक, शी वॉज चोजन टू टेक पार्ट इन दैट mission and she successfully completed that mission। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। और वो जो है उसके फैमिली मेम्बर्स, ओके, वो जो है उसको चीयर कर रहे थे। ओके, दे चीयर्ड फ्रॉम इंडिया, चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वहाँ से वो लोग देख रहे हैं, एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। तो जब वो कोलंबिया जो है लिफ्ट ऑफ मतलब जब वो रॉकेट जैसे कि अपने लॉन्च पैड से जैसे जब उठता है ना, सीधा सीधा ऊपर जाते हैं रॉकेट्स, और जो एरोप्लेन्स है बेटा वो जो है हॉराइजॉन्टली जाते हैं, उड़ते हैं, और जो ये रॉकेट्स होते हैं, स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं, ये बिल्कुल सीधे ऊपर भेजे जाते हैं, स्ट्रेट इन अ वर्टिकल पोजीशन। सो ये जो है कोलंबिया को जब वो देख रहे थे यहाँ से, तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं सब उसको चीयर कर रहे थे, मत मीन्स दे ऑल वर लाइक हैप्पी फॉर हर, वो लोग बहुत खुश थे उसके लिए। अलॉन्ग विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ के स्टाफ मेंबर्स के साथ वो सब मिलके उसको लिए चीयर कर रहे थे जब कोलंबिया अपने लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ कर रहा था। ओके, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज अ naturalized US citizen। So this Kalpana Chawla, okay, she was born in Karnal, Haryana, but she was a naturalized US citizen। अब naturalized US citizen क्या होता है, जब उनको जो है दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। ओके, when one country gives citizenship to a person, दूसरे कंट्री से आया है और उसको सिटीजनशिप मिल जाती है वहाँ की, सो उसको बोलते हैं नेचुरलाइज्ड। ओके, एंड दिस कल्पना चावला शी गॉट दिस सिटीजनशिप ऑफ यूएस, दैट मीन्स शी वॉज एडमिटेड, दैट मीन्स शी वॉज अ फॉरेनर एंड शी गॉट द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए। ओके, शी वॉज फ्रॉम इंडिया बट व्हेन शी वेंट टू स्टडी देयर, वो वहाँ पढ़ने गई थी। फिर जो है क्या कि उसने, yeah, let us read again, yes, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Perry Harrison।
उसने शादी भी जो है वहाँ पर एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है बेटा, जो कि फ़्लाइट्स जो है प्लेन्स को उड़ाना सिखाता है किसी को, ओके, ट्रेनर होता है वो, प्लेन्स को उड़ाना सिखाता है. सो हियर दिस कल्पना चावला, शी मैरिड दिस फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी हैरिसन. You have to remember these names. Besides being an astronaut, वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं थी कल्पना चावला, उसके पास और भी बहुत सारे स्किल्स थे. She was licensed to fly single and multi-engine land airplanes. तो वो जो है सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं थी जो सिर्फ स्पेस में ट्रैवल कर सकती थी, उसके पास लाइसेंस था टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, जो सिंगल इंजन वाला एयरप्लेन मतलब एरोप्लेन और मल्टी इंजन जिसमें बहुत सारे इंजन्स होते हैं एरोप्लेन, वो दोनों तरह के एयरप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस था उसके पास. शी कुड फ्लाई दिस प्लेन्स. सिंगल इंजन सी प्लेन्स. अब सी प्लेन क्या होता है बेटा? सी प्लेन इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरोप्लेन दैट कैन लैंड and take off from water. It can land on water and it can take off from water. वो पानी में लैंड भी कर सकता है और वहाँ से ही टेक ऑफ भी कर सकता है, तो उसको भी उड़ाने का लाइसेंस था उसके पास. सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स, ओके, ये भी ग्लाइडर उड़ाने का भी उसके पास लाइसेंस था. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. ओ माई गॉड, उसके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था. शी मतलब वो भी एक दूसरों को उड़ाना, प्लेन्स उड़ाना भी, कंट्रोल करना भी सिखाती थी. शी वॉज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्टर लाइक हर हस्बैंड जेन पेरी. शी वॉज ऑल्सो एन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. After qualifying as a pilot, कल्पना began to consider another challenge. और अब जो है वो पायलट की भी उसको डिग्री मिल गई थी. She could fly aeroplanes, she could fly gliders, she could fly sea planes. तो अब उसको पायलट की डिग्री मिल गई थी. She was qualified as a pilot. कल्पना began to consider another challenge. अब वो जो है एक और चैलेंज लेना चाहती थी. What was that? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. अब जो है वो नासा में अप्लाई करना चाहती थी. कौन से? स्पेस शटल प्रोग्राम, मतलब जो स्पेस में भेजे जाते हैं उस प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई करना चाहती थी अब कि मुझे भी स्पेस में जाना है. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो नासा ने जो है सबसे पहले उसको हायर मतलब पैसे देकर जब हम किसी को काम के लिए रखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड हायरिंग. सो सबसे पहले जो है उसको नासा ने एक रिसर्च साइंटिस्ट मतलब एक शोध वैज्ञानिक, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में उसको रखा था वहाँ पर. उन्होंने उसको पहले ये नहीं सोचा था कि हम इसको स्पेस में भी भेजेंगे, उसको सिर्फ रिसर्च के लिए रखा था वहाँ पर. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. But in 1994 उसका सिलेक्शन हो गया था नासा से, नासा ने उसको सिलेक्ट कर लिया था. अब उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी एज एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट आई टोल्ड यू, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू द स्पेस इज़ कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट. अब उसको स्पेस में भेजने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, है ना. बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए होती है अगर आपको स्पेस में जाना है. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, हर कोई नहीं जा सकता. बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको अगर आपको स्पेस में जाना है, इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट. व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, शी रिप्लाइड, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. अगर जब कोई उससे पूछता था कि यू आर अ वुमेन और इस फील्ड में तो यूजुअली मेन ही काम करते हैं, तो आपको कैसा लगता है आप इस फील्ड में हो, आप ये जो है ये प्लेन्स उड़ाना, सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स और अब तो स्पेस में भी जाना एस्ट्रोनॉट, तो इसमें यूजुअली मेन और इंडियंस तो वैसे भी, और वो भी वुमेन तो वैसे भी नहीं होते थे कोई. तो जब उससे कोई पूछता था कि आपको कैसा लगता है ये सब, सो वो क्या कहती है, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. वेल परस्यूइंग माई स्टडीज़, मतलब जब मैं अपनी स्टडीज़
कर रही थी, व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब कुछ और कर रही थी, दैट आई वाज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, मैं एक बहुत ही छोटी सी सिटी से आई हूँ, करनाल से, और अ डिफरेंट कंट्री, और हमारा कंट्री इंडिया जो है वो डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज़। वहाँ पर तो फिर भी, अमेरिका में तो फिर भी थोड़े एडवांस्ड होते हैं वहाँ के वुमेन जो हैं थोड़े से, लेकिन हमारे इंडियन जो हैं वुमेन को इतना नहीं सोचते हैं पढ़ाने की, और वो भी यहाँ की कभी स्पेस में भेजेंगे हम अपनी बेटी को, ऐसा उस टाइम पर इतना नहीं सोचते थे। सो इसीलिए वो कहती है कि इट वाज, मेरे लिए तो बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं था मैंने, क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सी सिटी से आई हूँ और मेरी कंट्री भी जो है वहाँ बहुत ही डिफरेंट है अमेरिका से। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दम, लेकिन मेरे सपने थे बचपन से ही, मैंने कुछ करना चाहती थी दूसरों की तरह, एंड मैंने जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उनको छोड़ा नहीं अपने सपनों को। आई फॉलोड दम, मैंने उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान लिया था, मतलब मैंने अपना। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और कल्पना चावला क्या कहती है कि और मैं बहुत फॉर्चुनेटली, मतलब लकी हूँ, कि जो भी लोग मेरे आसपास थे, दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी, मतलब उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया, किसी ने भी उसको कभी डिस्करेज नहीं किया कि तुम एक लड़की हो के तुम ये क्यों करना चाहती हो, तुम कभी नहीं बन सकती, उसके लिए तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ जानना होता है, तुम तो एक लड़की हो, तुम कैसे कर सकती हो ये सब। तो उसको जो है ऐसा किसी ने नहीं बोला था, डिस्करेज नहीं किया था, तो उसके लोग जो भी उसके आसपास से, दे ऑल एनकरेज्ड हर, सभी ने उसको प्रोत्साहन दी, हिम्मत दी, एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम यही करना चाहती हो तो कैरी ऑन, लगे रहो, मेहनत करते रहो, यू विल वन डे अचीव योर ड्रीम्स, आपको एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर सच होंगे। देन पैराग्राफ 5, Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। तो जो स्पेस शटल कोलंबिया में वो गई थी, तो उसका कितना टाइम वो टोटल स्पेस में रहे थे, टोटल उसकी जर्नी कितने दिन की थी, 15 डेज लगे थे, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इन दिनों में जो भी 15-16 दिन थे उसमें जो है अर्थ के 252 चक्कर काट लिए थे उन्होंने, और ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और कितने किलोमीटर्स, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया था। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज़ एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, तो जो क्रू था, जो उनके टीम मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स की टीम थी, उसमें एक जापानीज़ था और एक यूक्रेन, एक सिटी है, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ का एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी उनकी टीम में था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मैंने बताया था नियरली 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, और उनमें से क्या था, कुछ एक था पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, तो उन्होंने जो वहाँ पर प्लांट्स को, ओके, पॉलिनेटिंग मतलब जैसे कि एक प्लांट का जो है पॉलन जैसे दूसरे प्लांट में दे देते, ओके, ट्रांसफ़र, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। सो उन्होंने जो है इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए थे वहाँ स्पेस में, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, वो देखना चाहते थे कि स्पेस में कैसे फूड ग्रो होता है। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे जिससे कि स्ट्रॉन्गर मेटल्स बना सकें। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर में जो चिप्स लगते हैं उसको फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने की उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स, और इन सब में कितने पैसे लगे थे, बहुत सारे, 56 मिलियन डॉलर्स में, दैट इज़ द अमेरिकन करेंसी को डॉलर्स में बोला जाता है, सो दैट वाज 56 मिलियन डॉलर्स। Now come to paragraph 6. On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke,
देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव। तो उस दिन जो है सैटरडे की नाइट थी, दैट मीन्स इंडिया में, ओके। अमेरिका में तो सुबह के 9 बजे थे, बट इन इंडिया दैट वाज 7:30 PM, मतलब इवनिंग के 7:30 बजे थे। एंड व्हेन द न्यूज़ ब्रोक अबाउट कोलंबिया डिज़ास्टर, तो जब वो न्यूज़ सबने टीवी पे सुना, टीवी पे देखा कि कोलंबिया डिज़ास्टर मतलब कि एक तरह से आपदा होती है, ओके, नेचुरल आपदा। तो ये जो है कोलंबिया का जो डिज़ास्टर मतलब ब्रोक, जब न्यूज़ में ये खबर आ गई, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। सो सारे लोग जो है शॉक थे, हैरान थे, एंड डिसबिलीफ मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये खबर सच्ची है। दे थॉट दैट ये झूठी है, कहीं से कोई बोल दे कि झूठ है। दे वर अनेबल टू बिलीव, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सो दिस इज़ द स्पेस शटल, यू कैन सी कोलंबिया। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस मतलब वो सोए नहीं पूरी रात, as thousands of households stayed glued to their television sets। thousands of households मतलब जो हज़ारों घर थे जो करनाल के, वो सब जो है दे स्टेड ग्लूड मतलब ग्लू मतलब गम। तो जैसे गम की तरह, जैसे ग्लू होता है, फेविकॉल होता है ग्लू, तो वो जो है बिल्कुल ग्लू की तरह चिपके हुए थे सब टेलीविज़न सेट्स को। बिकॉज in the hope that कल्पना and the crew had somehow survived। तो वो टेलीविज़न सेट्स को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल चिपके हुए थे टेलीविज़न सेट्स के। करनाल के लोग वो सोए नहीं थे पूरी रात, और किस लिए नहीं सोए थे, उनको कहीं से वो खबर मिल जाए कि कल्पना चावला और जो बाकी के 6 क्रू मेंबर्स हैं वो सब ठीक ठाक हैं, इसी उम्मीद में कि कहीं टीवी पर न्यूज़ आ जाए कि वो सब ठीक ठाक हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दे ऑल वर नो मोर, वो सब ख़त्म हो चुके थे उस डिज़ास्टर में। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा है, शी वॉज अ हीरोइन, वॉज यूज़ किया गया है क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो वो लिखता है कि एनॉर्मस मतलब बहुत सारा, ह्यूज, एबिलिटी मतलब क्षमता। सो वो कहता है कि वो जर्नलिस्ट ने लिखा है कि अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आप में बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारे गुण होने चाहिए। तो क्या क्या होने चाहिए, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या है, फ्रॉम बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब कि आप तो पढ़ते हो ना लाइफ साइंस के बारे में, ओके, बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए आपको। टू एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडीज़ बेटा, जिसमें कि एस्ट्रो मतलब कि स्पेस के बारे में, एंड फिज़िक्स आप लोगों को पता होगा कि फिज़िक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एस्ट्रोफिज़िक्स दैट इज़ अ ब्रांच विच स्टडीज़ बोथ, ओके, स्पेस एंड फिज़िक्स। सो बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए आपको, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट्स को कैसे बनाना, डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब कि सिर्फ एक ही चीज़ में आपने डिग्री कर ली, एक ही चीज़ फील्ड में नहीं, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब कि हर फील्ड बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। यू हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट, आपको होना चाहिए। बायोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव encyclopedic knowledge to be an astronaut। हर अचीवमेंट इज़ ऑफ इंस्पायरिंग। तो आपको जो है ये सारी स्किल्स आप में होनी चाहिए, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। एंड यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है बेटा, एक बुक होती है इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज दी होती है। जैसे अगर कोई इंसेक्ट्स की इंसाइक्लोपीडिया है तो उसमें ऑलमोस्ट हर टाइप के इंसेक्ट के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज दी गई होती है।
तो ऐसे ही अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपके पास जो है इंसाइक्लोपीडिया की तरह बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर स्पेसक्राफ्ट ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर कैसे करना है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग, और अचीवमेंट मीन्स सक्सेस। और ये जो कल्पना चावला ने ये सारी स्किल्स थी उसके अंदर, शी हैड ऑल द स्किल्स, शी वॉज मल्टी स्किल्ड। और उसका ये जो अचीवमेंट है, जब वो स्पेस में उसको जाने के लिए उसको चुना गया था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड दैट इज़ इंस्पायरिंग, मतलब कि बहुत ही इंस्पायरिंग है ये। ओके, फॉर एवरीवन, ये बहुत ही प्रेरणा देने वाला है सभी के लिए। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. So बहुत, जब ये कल्पना चावला की स्टोरी जो भी कोई पढ़ता है तो हमारे इंडियंस के लिए भी, ओके, बहुत सारे यंग इंडियंस जो हैं उनके लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत है। ओके, दे गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन when they read this story of कल्पना चावला, a girl from a small town, जो बहुत ही छोटे से टाउन करनाल से आई थी, and who touched the skies, मतलब उसने आसमान को छू लिया था, had become an inspiration, वो उनके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia, तो उसने जो है, जब वो स्पेस शटल में थी कोलंबिया में, तो वहाँ से उसने जो है एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। तो उसका जो कॉलेज था चंडीगढ़ में, उसके स्टूडेंट्स के लिए उसने एक मैसेज भेजा था। और क्या था वो मैसेज? कल्पना सेड, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। तो पाथ मतलब रास्ता, तो जो वे है, रास्ता है, अगर आप सपने देख रहे हो और अगर आप उन ड्रीम्स को अपना जो है सच बनाना चाहते हो, ओके, अपने सपने को सच बनाने का रास्ता है। ओके, एग्जिस्ट मतलब वो होता है, बट उसको देखने की और उस पर जाने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ओके, आप उस रास्ते को ढूंढो और आप उस रास्ते पे जाओ। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, भगवान तुम्हें ऐसी, ओके, वो क्या कहती है कल्पना चावला, मे यू हैव द विजन, मतलब तुम्हारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए कि तुम उसको देख पाओ, उस रास्ते को ढूंढ पाओ, फॉर यू फाइंड दैट पाथ, एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस रास्ते पे जाओ। आपने मान लो रास्ता तो ढूंढ लिया है, लेकिन उस पर जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, तो उसने जो है अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्या विश किया? विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। ओके, उसने उनको भी बोला कि अपने जो ड्रीम्स को सच बनाने की जो जर्नी है उसके लिए उन्होंने उसको, कल्पना चावला ने उनको विश किया। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। तो यहाँ पर जो है we end the story, okay, this कल्पना चावला की chapter it ends। so क्या कहती है वो लास्ट में? There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। तो बहुत सारे होंगे जो इस जर्नी, तो अपने सपने पूरे करने की जर्नी को स्टार्ट कर देंगे। ओके, हु विल स्टार्ट ऑफ ऑन द जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। दैट्स ऑल चिल्ड्रन टुडे अबाउट दिस चैप्टर। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी सेंडिंग इन द नेक्स्ट क्लास।